ایسا پاکستانی جرنیل جسے ٹائیگر نیازی کہا جاتا تھا، آخر وہ ڈھاکہ کے پلیٹین میدان میں سرنڈر کرنے پر مجبور کیوں ہوا؟ اپنے سینے پر سب سے زیادہ قومی میڈل سجانے والے جنرل نیازی کیا واقعی سقوط ڈھاکہ کے ذمہ دار تھے، یا پھر پاکستان کے دو لخت ہونے کے پس پردہ حقائق کچھ اور ہیں؟ جنرل نیازی نے ایسا کیوں کہا کہ اب تو مجھے اپنے شہر میں برقع پہن کر جانا پڑے گا؟ ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں جنرل نیازی کے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا؟ اور لیفٹیننٹ جنرل امیر عبداللہ خان نیازی کی پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ کیا رشتہ داری ہے؟ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ایسٹ پاکستان کے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جنرل امیر عبداللہ خان نیازی کی زندگی کے متعلق دلچسپ فیکٹس آپ تک شیئر کیے جائیں گے۔ اردو الرٹس کی اس نئی ویڈیو میں خوش آمدید، اور میں ہوں ڈاکٹر عرفان عزیز۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو سٹارٹ کریں، اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دباتے ہوئے آل پر کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ ہی کو مل سکے۔ اور آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں، جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ مشرقی پاکستان کے گورنر اور مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جنرل امیر عبداللہ خان نیازی پاکستانی عسکری تاریخ کے وہ اکلوتے آرمی آفیسر ہیں جن کے یونیفارم پر سب سے زیادہ میڈل سجے نظر آتے تھے۔ امیر عبداللہ خان نیازی کو بنگلور کے ملٹری اکیڈمی میں ٹریننگ کے بعد 1942 میں انڈین آرمی میں کمیشن ملا۔ امیر عبداللہ خان نیازی اپنے فوجی کیریئر کے آغاز پر دوسری جنگ عظیم لڑنے برما کے محاذ پر بھیج دیے گئے۔ جنگ عظیم دوم میں بہادری اور جوان مردی دکھانے والے امیر عبداللہ خان نیازی کو ملٹری کراس سے نوازا گیا۔ انہیں برٹش انڈین آرمی کی طرف سے ٹائیگر نیازی کا خطاب دیا گیا۔ امیر عبداللہ خان نیازی نے 1945 میں اس وقت کے لیفٹیننٹ کرنل یحییٰ خان کی نگرانی میں کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ سے پیشہ ورانہ عسکری ٹریننگ حاصل کی۔ قیام پاکستان کے بعد کیپٹن امیر عبداللہ خان نیازی نے پاک آرمی کو جوائن کیا اور انہوں نے کوئٹہ کے کمانڈ اینڈ سٹاف کالج میں پڑھانا شروع کر دیا۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں بریگیڈیئر نیازی کی شاندار جنگی خدمات کو سراہتے ہوئے انہیں صدر پاکستان فیلڈ مارشل ایوب خان ہلال جرأت سے نوازا۔ 1971 تک امیر عبداللہ خان نیازی پروموٹ ہو کر لیفٹیننٹ جنرل بن چکے تھے۔ ایسے میں جنرل نیازی کو مشرقی پاکستان کی کمانڈ دی گئی۔ جنرل گل حسن اپنی کتاب میں تحریر کرتے ہیں، 1971 میں جنرل نیازی کو مشرقی محاذ کی قیادت سونپی گئی تو جنرل گل حسن راولپنڈی کے GHQ میں بیٹھے تھے۔ یہ امتحان کی گھڑی تھی، ایک کے بعد ایک جنرل مشرقی پاکستان کی کمان سنبھالنے سے انکار کر رہا تھا۔ پھر یہ ذمہ داری جنرل نیازی کو سونپی گئی، جن کا سینہ 28 تمغوں سے جگمگا رہا تھا۔ انہیں 3 ڈویژن فوج کے ساتھ مشرقی پاکستان کا دفاع کرنا تھا۔ میجر جنرل خادم حسین راجہ اپنی کتاب اسٹرینجر مائی اون کنٹری میں لکھتے ہیں، مشرقی پاکستان تعیناتی کے بعد افسران سے کہا کہ اس ڈیش ڈیش بنگالی قوم کی نسل بدل دوں گا۔ اس موقع پر ایک بنگالی فوجی افیسر میجر مشتاق بھی وہاں موجود تھے۔ وہ اپنے باس جنرل نیازی کی بات سے اس قدر دل برداشتہ ہوئے کہ انہوں نے باتھ روم میں جا کر خود کو گولی مار دی۔ 17 اگست 1988 میں صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق کے ساتھ طیارے حادثے میں شہید ہونے والے بریگیڈیئر صدیق صالح کی کتاب میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھے کے مطابق 10 اپریل 1971 کے روز جب میجر جنرل خادم حسین راجہ نے ایسٹرن کمان جنرل نیازی کے سپرد کی تو وہ کہنے لگے، میجر جنرل خادم، تم نے فوج کی کمان تو میرے سپرد کر دی، لیکن تم اپنی مسٹریسز کی کمان کب دو گے؟ مشرقی پاکستان میں حالات سنگین سے سنگین ہو رہے تھے۔ ایسے میں انٹرنیشنل میڈیا کوریج کے لیے ڈھاکہ پہنچ چکا تھا۔ دسمبر 1971 میں جنرل نیازی نے ڈھاکہ میں BBC کے رپورٹر سے کہا تھا کہ BBC برٹش براڈ کاسٹنگ کارپوریشن نہیں بلکہ برہمن براڈ کاسٹنگ کارپوریشن بن چکی ہے۔
जनरल नियाज़ी का ये जुमला आज भी तारीख में दर्ज है कि ढाका विल फॉल ओनली माई डेथ बॉडी। मशरकी पाकिस्तान के अलमनाक सानिए के बाद जनरल नियाज़ी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, मुझे अपने शहर में बुर्का पहनकर जाना पड़ेगा। 16 दिसंबर 1971 का वो स्याह दिन आया जब मशरकी पाकिस्तान के मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाज़ी ने ढाका के मशहूर पल्टन ग्राउंड में दुश्मन भारत के सामने घुटने टेक दिए। जनरल नियाज़ी ने लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के रूबरू हथियार डाल दिए और शिकस्त तस्लीम कर ली और यूं पाकिस्तान के 93,000 फौजी जंगी कैदी बनकर भारत के हिरासत में चले गए। ब्रिगेडियर सदीक सालिक अपनी किताब मैंने ढाका डूबते में लिखते हैं कि GHQ ने जनरल नियाज़ी को हथियार डालने का कोई भी हुक्म नहीं दिया था, उन्हें सिर्फ जंग बंदी के आर्डर्स दिए गए थे। एक गैर मुल्की जरीदे के मुताबिक ढाका में अपनी फौजी बर्तरी रखने और मज़ीद 2 हफ्ते जंग जारी रखने की पोजीशन में होने के बावजूद जनरल नियाज़ी ने हथियार तब डाले जब जनरल जैकब ने जनरल नियाज़ी को ये धमकी दी कि अगर उन्होंने सरेंडर ना किया तो उनके ख़ानदान को कत्ल कर दिया जाएगा। जनरल नियाज़ी ने भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा को अपना रिवाल्वर जमा करवाया जो आज भी इंडिया के आलमी म्यूजियम में मौजूद है। जनरल नियाज़ी को आर्मी प्रोटोकॉल के साथ हिरासत में ले लिया गया। वो भारतीय रियासत मध्य प्रदेश के शहर जबलपुर के आर्मी हेडक्वार्टर में कैद काटते रहे। ब्रिगेडियर सदीक सालिक लिखते हैं कि जब उन्होंने कलकत्ता के तारीखी फोर्ट वॉल्यूम में जनरल नियाज़ी से सकूत ढाका का जिक्र किया तो वह जवाब में जनरल नियाज़ी गिले शिकवे करते रहे। फिर जनरल नियाज़ी से सवाल पूछा गया कि आपके पास थोड़े वसाइल थे, अगर वही थोड़े वसाइल ठीक से इस्तेमाल होते तो मज़ीद जंग चल सकती थी। जवाब में जनरल नियाज़ी ने कहा, इसका क्या फ़ायदा होता, ढाका की ईंट से ईंट की बच जाती, शहरी जिंदगी मफलूज होकर रह जाती, गलियों में लाशों के अंबार लग जाते, लाशों के गलने सड़ने से ताउन और दूसरी बीमारियां फूट पड़ती, इसके बावजूद अंजाम वही होता। मैं हज़ारों बेवाओं और लाखों यतीमों का सामना करने के बजाय 90,000 कैदी वापस ले जाना बेहतर समझता हूँ। साल 2017 में भारत में जनरल नियाज़ी, जनरल अरोड़ा और सकूत ढाका के अनवान से एक शॉर्ट फिल्म मुक्ति बनाई जिसमें तारीख को मसख करते हुए सिर्फ तस्वीर का एक रुख दिखाया गया। इस शॉर्ट फिल्म में जनरल नियाज़ी के अलावा जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शेख मुजीबुर रहमान और इंदिरा गांधी के इंटरव्यूज़ भी शामिल किए गए। हमूदुर रहमान कमीशन की गैर हतमी रिपोर्ट मंजर आम पर आई तो इसके मुताबिक जनरल नियाज़ी सानिया मशरकी पाकिस्तान के जिम्मेदार थे, लेकिन जनरल नियाज़ी आखिरी वक्त तक अपनी पोजीशन का दिफा करते रहे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पावर में आए, 3 स्टार जनरल नियाज़ी को 2 स्टार का मेजर जनरल बना दिया और फिर जुलाई 1975 में उन्हें फौज से निकाल दिया गया। भुट्टो साहब ने नियाज़ी से हिलाल जुर्रत समेत तमाम फौजी मेडल्स वापस ले लिए और फिर उनकी पेंशन भी जब्त कर ली। याद रहे कि हिलाल जुर्रत निशान हैदर के बाद सबसे बड़ा फौजी एजाज़ है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में जनरल नियाज़ी की मुसलसल किरदार कुशी होती रही। अभी मैंने आपको बताया था कि जनरल नियाज़ी मशरकी पाकिस्तान की कमान लेते हुए मेजर जनरल खादिम हुसैन राजा से बोले, आप मुझे ईस्ट पाकिस्तान की कमान तो दे दी, लेकिन मुझे अपनी दाश्ताओं की कमान कब दोगे। ऐसा कहा जाता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ईमा पर जनरल नियाज़ी का इमेज ख़राब करने की हर मुमकिन कोशिश की गई और किताबों में तहरीर ऐसी तमाम तार मुग़लज़ात का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। सीनियर सहाफ़ी ज़िया शाहिद मरहूम ने जनरल नियाज़ी का इंटरव्यू किया। वो बताते हैं, जनरल साहब टिश्यू पेपर से आंसू साफ करते हुए बोले, हाँ ज़िया शाहिद, हमसे बहुत गलतियां हुई, लेकिन जितना झूठ किताबों में लिखा गया है इसका तो 1% भी दुरुस्त नहीं। जनरल नियाज़ी ने सानिया मशरकी पाकिस्तान और अपनी जंगी अयाम की आप बीती डबल ट्रायल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान तहरीर की। इस किताब का उर्दू तर्जमा मैंने हथियार क्यों डाले के नाम से छप चुका है।
जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाज़ी भुट्टो मुखालिफ पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद यानी PNA के जलसों में खिताब किया करते थे। वो भुट्टो साहब की पॉलिसियों पर तनकीद किया करते थे। जनरल नियाज़ी भुट्टो दौर में सियासत में आए और उन्होंने जमात आलिया मुजाहिदीन के नाम से सियासी जमात बनाई। उनकी पार्टी सिंबल पगड़ी था। ताहम जनरल नियाज़ी ने इलेक्शन नहीं लड़ा। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की तकरीरों में वज़ीर आज़म इमरान खान को जनरल नियाज़ी से तशबीह देते हुए बुज़दिल और डरपोक कहते हुए नज़र आते हैं। इस तरह मौलाना फजलुर रहमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि हम इमरान खान की ख़ानदानी रिवायात से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, उनके हथियार डालने की पुरानी आदत है। अब सवाल ये जन्म लेता है कि क्या वाकई इमरान खान और जनरल नियाज़ी के रिश्तेदारी है? तो यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान खान और जनरल नियाज़ी दोनों नियाज़ी कौम से हैं और दोनों मियाँ वाली के रहने वाले हैं, लेकिन कप्तान और जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाज़ी की कोई रिश्तेदारी नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान शेरवान खेल नियाज़ी हैं, जबकि जनरल नियाज़ी का ताल्लुक़ नियाज़ी कौम के सुराब की एक शाख से था। जनरल नियाज़ी के जद अमजद सुराब खान नियाज़ी एक बहादुर जंगजू थे, जिन्होंने अपने चंद सिपाहियों और जानिसारों से मिलकर महाराजा रंजीत सिंह की फ़ौज का डट कर मुकाबला किया और फिर लड़ते लड़ते सुराब खान नियाज़ी शहीद हो गए। साल 1915 में मियाँ वाले के मज़ाफ़ाती इलाके बोलो खेल में पैदा होने वाले अमीर अब्दुल्ला खान नियाज़ी 1 फरवरी 2004 के रोज़ 89 बरस की उम्र में लाहौर में इंतकाल कर गए। उन्हें लाहौर कैंट के फौजी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, उर्दू अलर्ट्स को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस देखते रहें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।